Hello students. Hello students. We have already started the chapter plant growth and development, and auxin rule we have already done. I told you about the plant growth regulators. Two type of plant growth regulators we have already discussed, that plant growth promoter और plant growth inhibitor. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं। और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। ऑक्सिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द जिब्रेलिन. Gibberellin, these are the weakly acidic hormones having the gibbon ring-like structure, and their main function, that is they cause the cell elongation in the intact plant, and the another main function is the increase in the internodal length of genetically dwarf plant. यानी कि जो genetically dwarf plant है, अगर उस पर भी जिब्रेलिन्स अप्लाई किए जाएं, देन इट कॉज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ दैट प्लांट. ओके, तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी अगर हम इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो कोरोसोवा नाम के साइंटिस्ट थे. he discovered, he told about the gibberellin, and till date 125 more than that gibberellins have been discovered. Or gibberellic acid Ga3, this is the very first gibberellin that was isolated. Okay, when we talk about the discovery, it was found that when the scientist was working in his lab, he found that the few rice seedling that become abnormally lengthy, and he called them as the foolish seedling, means foolish seedling of राइस. फुलिश सीडलिंग क्यों कहा? क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई. ओके, दैट्स व्हाई कॉल्ड फुलिश सीडलिंग, एंड दे आर कॉल्ड दैट दे हैव द बकैन डिजीज टू दैट सीडलिंग. लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट this disease is means when the seedlings they grow lengthy, it was found that basically these rice seedling that get infested with the fungus, that is Zibberella fusicori. Okay, and this Zibberella fusicori that release the gibberellin. Are you getting my point? कि Zibberella fusicori नाम का फंगस वहाँ मिला, and Zibberella fusicori cause the release of the gibberellin, and this gibberellin is responsible for the elongation of the seedlings, that is the rice seedling, and later on it was found that it is responsible for increase in internodal length and the cell elongation. Okay, so this was about the historical background of the gibberellin. When we talk about the bioassay, what was the bioassay? The testing of the means practical testing of the functions that are particular hormone, the roles that are played by hormone. जैसे जिब्रेलिन का हम मेन फंक्शन क्या पढ़ रहे हैं कि वो सेल इलोंगेशन कर रहा है, तो इसकी किस तरीके से इसको बायोलॉजिकली टेस्टिंग किया जा सकता है? बाय द ड्वार्फ पी टेस्ट. बायोएसे ड्वार्फ पी, यानी कि जो जेनेटिकली ड्वार्फ पी सीड्स हैं उनको दे आर अलाउड टू जर्मिनेट, एंड देन जिब्रेलिक एसिड इज अप्लाइड टू देम, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? द जेनेटिकली ड्वार्फ पी सीड्स दे ग्रो इनटू tall plant. What was the reason? Because it has been supplied with the gibberellins. Okay, so this is the bioassay for the gibberellin. Next is the gibberellic acid Ga3. This is the structure of the gibberellic acid, and this is the very first, and this is very important, you should keep it in mind. Gibberellic acid Ga3, it is the first gibberellin that was isolated from the fungus. You should keep in your mind the name of the fungus, the name of the scientist, Baccan disease, Zibberella fusicori, because all these points are very important. Okay, now let's have the discussion about the gibberellin functions. अगर हम functions की बात करें, सबसे पहला जो function आता है that is stem and leaf growth. Stem and leaf growth, we know that gibberellin they cause
increase in the cell size of the stem and the leaf, cell elongation, and it cause the increase in the size of the leaf, of the stem, of the flower. Okay, तो it cause the stem and the leaf growth. सेकेंड क्वेश्चन जो फंक्शन है इसका, दैट इज ड्वार्फ शूट, यानी कि व्हेन जिब्रेलिन्स दे आर अप्लाइड टू जेनेटिकली ड्वार्फ शूट, it was found that it caused the increase in the length, internodal length, and caused the dwarf shoot to be elongated one. Okay, so genetically dwarf shoots even grow to the tall plants. Okay, next is bolting. Bolting is something very important. Means after the application of the Zibrelin, the subapical meristem grow faster, and there is the elongation of the reduced stem, especially in case of beet, cabbage and rosette plant. Means ऐसे rosette plant आप समझते हो जिनकी internodal length क्या हो, कम हो. तो अगर you know what is internode, first you must know. Means for example, this is a stem, this is a leaf, this is a leaf. So this point from where the leaf arise is called node, and this is another node, and the distance between the two node is called internode. अब इसको हम थोड़ा सा और अगर पढ़ें तो एक प्लांट देखो ये है जिसकी ये है, this is internode. Okay, when it is supplied with the Zibrelin, this internodal length is increased. अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि जिब्रेलिन अगर अप्लाई किए जाते हैं तो इंटरनोड लेंथ बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वो प्लांट ही टॉल हो जाएगा. तो बोल्टिंग क्या है, जो रिड्यूस्ड स्टेम है, when it is supplied with the Zibrelin, it cause increase in the internodal length, and that leads to the length increase. Okay, that is called bolting. नेक्स्ट आता है dormancy. What is dormancy? Dormancy means temporary suspension of all the activities of a seed. Zibrelins that inhibit the dormancy. However, here it work against the abscisic acid, यानी कि इसका एंटागोनिस्टिक फंक्शन हो गया एब्सिसिक एसिड के लिए, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डॉर्मेंसी प्रमोट करता है, जबकि ये क्या करता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम कर रहा है जिब्रेलिन्स. ओके, सो नेक्स्ट है डिले कर रहा है, मीन्स उस चीज़ को. नेक्स्ट आता है हमारे पास seed germination. This is also very important. What is seed germination? Means Zibrelins, they stimulate the production of the messenger RNA that cause the production of enzyme like lipases, proteases, ribonucleases, amylases. यानी कि ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस हुए जिसकी वजह से सीड में जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट था, दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, इट गेट्स सॉल्युबलाइज. अब जब इतने न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, देन सीड अल्टीमेटली जर्मिनेट. ओके, क्योंकि अब सीड के पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, इट कैन इजीली जर्मिनेट. नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रूट डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जो कि नीट के पेपर के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो जिब्रेलिन्स हैं that cause the fruit development. Even in case of apple, when we talk, it is responsible for the size and the shape of the apple fruit. And when we talk about the grapes, it causes the increase in number of the stalk. When the number of stalks are more, means there are more rooms for the development of the grapes. Means जैसे अब मान लो बहुत सारी stalks grow कर रही हैं, number of fruits, that is grapes, that will also increase. Is it clear? Next आता है flowering. Means it stimulate the production of flower in long day plants. Okay. फिर आता है हमारे पास वर्नेलाइजेशन. वर्नेलाइजेशन क्या है? समटाइम यू माइट हैव लिसन कि हम एक क्रॉप को ग्रो करते हैं समर एंड में, एंड देन prolonged winter period is there, and when winter ends up, then cutting of that crop is there. So but you observe कि during this whole process the winter treatment, the winter part was very important for the growth of the crop. क्यों? क्योंकि that winter treatment means that cold treatment plays important role in the growth of that plant. तो
अगर प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट दे दिया जाए सीड्स कंडीशन में, पहले ही चिलिंग ट्रीटमेंट दे दिया जाए, दैट प्रोसेस ऑफ गिविंग चिलिंग ट्रीटमेंट so that to reduce the vegetative phase, that is called vernalization. तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, उस कोल्ड ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर देता है. मीन्स व्हेन वी अप्लाई द जिब्रेलिन द कोल्ड ट्रीटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड. ओके, फिर आता है सेक्स एक्सप्रेशन, यानी कि व्हेन द जिब्रेलिन्स आर अप्लाइड ऑन द कैनाबिस, भांग जिसे हम कहते हैं, द मेल फ्लावर डेवलप ऑन द genetically female cannabis plant. Okay, so these are few functions of the gibberellin. Now let's have discussion about the uses. Very first use is fruit growth. आपने देखा कि जिब्रेलिन्स का यूज़ कहाँ किया गया, एप्पल के फ्रूट साइज शेप को रेगुलेट करने के लिए. फिर नंबर ऑफ फ्रूट, ग्रेप के केस में आपने देखा कि बढ़ाए गए. सेकेंड आता है पार्थिनोकार्पी, जैसे एप्पल है, पियर है, इनमें सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए जिब्रेलिन को यूज़ किया जाता है. देन माल्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द बेवरेज इंडस्ट्री द माल्ट प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन जिब्रेलिन इट स्टिमुलेट द माल्ट प्रोडक्शन इन द बार्ले ग्रेन्स. ओके, फिर आता है ओवरकमिंग डॉर्मेंसी. हमने बताया था, पहले भी डिस्कस किया कि ये डॉर्मेंसी को ओवरकम करता है. मीन्स इट स्टार्ट द ग्रोथ ऑफ दैट, द बड डॉर्मेंसी, ट्यूबर डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, दैट इज ओवरकम. Then delayed ripening, this is very important. Means the gibberellins are used to increase the time of the fruit to stay on the trees, means on the plant itself, because it delay the ripening. Even after harvesting of that, for example in case of citrus fruit, कि उसकी वो ख़राब ना हो, वो उसकी जो ओवर राइपनिंग ना हो, these ripening is delayed by using the gibberellin. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है, डिले करता है राइपनिंग को. फिर है फ्लावरिंग, मीन्स इट कॉज द फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स. ओके, अभी आप पढ़ोगे लॉन्ग डे प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट क्या है, बट इट प्रमोट द फ्लावरिंग. देन शुगर केन के केस में इसकी तो प्रोडक्शन कई गुना पर हेक्टेयर 20 टन्स पर हेक्टेयर बढ़ जाती है अगर जिब्रेलिन अप्लाई किया जाता है. क्यों? क्योंकि शुगर केन क्या है, स्टेम. आपको शुगर केन की स्टेम से ही सब कुछ लेना है. तो जिब्रेलिन क्या कर रहा है, स्टेम की लेंथ को ही तो बढ़ा रहा है. तो व्हेन यू अप्लाई द जिब्रेलिन टू द शुगर केन क्रॉप यू विल गेट द प्रोडक्टिविटी एनहांस्ड. ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शुगर केन की प्रोडक्टिविटी पे कौन सा हार्मोन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है. फिर है अर्ली मैच्योरिटी, जो हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ अर्ली मैच्योरिटी. मीन्स जैसे जो कॉनिफर्स के केस में है, कॉनिफर्स पता है जैसे पाइनस है जो हिली एरियाज में मिलते हैं, उसमें ये सीड की जो डेवलपमेंट है अर्ली स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड अर्ली मैच्योरिटी. तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए कुछ फंक्शंस और इसके कुछ यूजेस. बट अगेन टू अवॉइड एनी मैशअप इन योर माइंड, क्योंकि जब आप ऑक्सिन से जिब्रेलिन पे जाएंगे तो ऑक्सिन भूल जाएंगे, जिब्रेलिन से साइटोकाइनिन पे जाएंगे तो जिब्रेलिन क्लियर. तो बेटर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मैश एंड यू आर 100% श्योर to give all the answers in your NEET exam as well as in your subjective exam. I have some tricks for you as I told you in the auxin also. So let's have the discussion of the Gibberellin trick. Malti Das, a girl who applied for the NEET but failed there, not got success, then she applied for the BSc Life Sciences. So very simple sentence which has been used for means to keep the all functions in mind, that is Malti Das applied for BSc Life Sciences. आपको ये पूरी की पूरी लाइन याद रखनी है और एक लाइन में आप जिब्रेलिन के सारे फंक्शन कर सकते हैं. समझ आए? अगेन आई एम स्पीकिंग, मालती दास अप्लाइड फॉर BSc लाइफ साइंसेज. तो लेट्स हैव द डिस्कशन. देखो मालती, मालती सिंपल माल्टिंग से, ठीक है. माल्टिंग मतलब प्रोडक्शन ऑफ माल्ट. It is used in the beverages, brewing industry it is used, and production of gibberellic acid. You remember gibberellic acid? That is the first gibberellin that was isolated. Okay, so malt production that is enhanced by the gibberellin. ये देखो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था malt production. Then we have
डास, डास में हमारे पास दो वर्ड में कैपिटल में लिख देती हूँ DAS, यानी कि डिले सेनिसेंस। डिले सेनिसेंस का मतलब ये क्या करता है, सेनिसेंस, सेनिसेंस मीन्स जो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल्स एंड देन अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ, दैट इज कॉल्ड सेनिसेंस। तो जिब्रेलिन्स जो हैं दैट डिले द सेनिसेंस, इंक्रीज द मेच्योरिटी पीरियड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, यू शुड कीप इन माइंड that it increase the maturity period of the particular plant and particular product. Then next is applied. applied में से हमने एप्पल लेना है। एप्पल का मैंने आपको बताया था, एप्पल के केस में क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एप्पल के साइज और शेप को कौन कंट्रोल कर रहा है, जिब्रेलिन। हमने पढ़ा था कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साइज एंड शेप ऑफ एप्पल। ओके, नेक्स्ट फॉर, फॉर कुछ नहीं है, फॉर सिर्फ इसको कनेक्ट करने के लिए था, फॉर हमारे सीक्वेंस में नहीं है। नेक्स्ट है BSc, बेटर यू शुड राइट इट कैपिटल BSc। क्यों, क्योंकि BSc में तीनों का मतलब अलग है। BSc, B का मतलब है बोल्टिंग, ओके, बोल्टिंग, एंड S का मतलब है स्टेम लेंथ, और C का मतलब है कॉनिफर्स। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। बोल्टिंग, बोल्टिंग आपको याद है कि कोई रिड्यूस्ड स्टेम है, उसके ऊपर अगर जिब्रेलिन अप्लाई किए जाते हैं तो इंटरनोड लेंथ एकदम से बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बीट, कैबेज, रोजेट प्लांट, रोजेट प्लांट जिनकी इंटरनोड लेंथ कम है। ओके, तो बोल्टिंग में जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। S मतलब स्टेम लेंथ, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, हमने शुगर केन के केस में अभी बढ़ा था, दैट इट कॉज द इंक्रीज इन स्टेम लेंथ। फिर है C, C का मतलब कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मीन्स जो हिली एरियाज में जैसे ये पाइनस हमें मिलता है, तो दैट कॉज द अर्ली प्रोडक्शन ऑफ द सीड इन केस ऑफ कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में अर्ली सीड germination or early seed production, that is the early seed production. Okay, then we have the LS. LS, what is the L? That is the length of stalk, length of stalk। देखो हमने ग्रेप के अंदर पढ़ा था ना कि उसकी लेंथ बढ़ती जाती है स्टॉक की, तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रूट भी बढ़ेंगे, ग्रेप्स भी बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमने इसका एक शॉर्ट बना लिया जिसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये सारा हमारा जो है ये है इसका डिटेलिंग इसकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इसको एक्सपैंड करा है। मैं दोबारा से बताती हूँ, मालती दास अप्लाइड फॉर BSc लाइफ साइंस। LS का मतलब है लाइफ साइंस, माल्टी का मतलब है माल्टिंग, माल्टिंग का मतलब जो जिब्रेलिक एसिड है वो माल्ट प्रोडक्शन को एनहांस करता है। दास में आता है डिले सेनिसेंस, क्योंकि मैंने दो वर्ड लिए हैं D और S, यानी सेनिसेंस को ये क्या करता है, डिले करता है। अप्लाइड में मैंने लिया एप्पल, यानी कि ये एप्पल के फ्रूट शेप साइज को कंट्रोल करता है, मतलब बेटर करता है। BSc, B का मतलब था बोल्टिंग, यानी कि रिड्यूस्ड स्टेम की इंटरनोडल लेंथ को ये ग्रो करता है। S का मतलब स्टेम लेंथ, देन C का मतलब कॉनिफर्स में अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ओके, एंड अर्ली मैच्योरिटी कॉज करता है ये। LS यानी कि लेंथ ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ ग्रेप्स, मीन्स व्हेन द लेंथ ऑफ द स्टॉक इज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ द ग्रेप्स दैट विल डेवलप ऑन द स्टॉक्स इटसेल्फ। समझ आया आपको? तो बहुत इजी तरीके से आप इस ट्रिक को अपने माइंड में रख सकते हैं। मालती दास अप्लाइड फॉर BSc लाइफ साइंसेज, इस एक लाइन से आप ऑलमोस्ट इन सब का जवाब दे सकते हैं। एंड दीज आर द मोस्ट कॉमन पॉइंट विच आर गिवन इन योर NCERT बुक्स एज वेल। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स। हाँ जी बेटा, नाउ दिस इज द थर्ड हार्मोन that I am going to discuss with you, auxin, gibberellins we have already discussed. What is this? That is the cytokinin. What was observed?
that cytokinins. What are the cytokinins? Means these are the hormones which are usually basic in nature, and these are aminopurine derivative or phenylurea derivative. And नाम से ही आपको इसका थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि cytokinins means द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोकाइनिन्स कौन से हार्मोन हैं जो सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं. ओके, नाउ साइटोकाइनिन की जो डिस्कवरी है डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट साइंटिस्ट ने करी, डिफरेंट सोर्सेज से रिपोर्ट हुई इसकी. जैसे मिलर, ही रिपोर्टेड द साइटोकाइनिन from the herring sperm tail, and that cytokinin was named as kinidin. And this is not a natural cytokinin, it is a synthetic cytokinin. And Latham, he also obtained the another kind of the cytokinin, and that kinidin is called as zeatin, and it was recovered from the अनराइप मेज ग्रेन एंड द कोकोनट मिल्क. कोकोनट मिल्क में बहुत साइटोकाइनिन्स होता है, बहुत अमाउंट, एंड दैट कॉज द डिवीजन ऑफ द सेल्स. ओके, तो अब आता है बायोएसिम. देखो, सबसे पहले जो स्पूक एंड हिज वर्कर्स, दे वर वर्किंग ऑन द टबैको प्लांट, एंड they were observed that when the tobacco plant pith was given, means the cytokinin, the cell division is increased. And later on it was found that cytokinins are responsible for the cell division. Okay, now what is the bioassay? Means what is the practical testing for the cytokinesis, cytokinin, tobacco pith culture, that the pith of the tobacco when it is grown in the culture medium, the cytokinins are provided with it, and it show the fast cell division, formation of the cells. Callus culture is there, means the cell division increase in the presence of cytokinin as compared to the other petri plate, other culture having tobacco pith but it doesn't have the cytokinin. Okay, नेक्स्ट आता है, अब हमारा यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, व्हाट आर द फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ साइटोकाइनिन. सबसे पहला आता है फंक्शन में सेल डिवीज़न, जो कि मैंने आपको नाम से ही बताया है कि साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन है सेल्स को डिवाइड करना. ओके, देन सेकंड फंक्शन है, जैसे ऑक्सिन्स हैं उसी तरीके से ये क्या करते हैं, सेल इलोंगेशन करते हैं. क्या काम कर रहे हैं ये, सेल इलोंगेशन. अब साइटो जो हमने ये पढ़ा, सेल इलोंगेशन है या सेल डिवीज़न है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस. मॉर्फोजेनेसिस मतलब जैसे अगर टिश्यू कल्चर है तो उसमें कैलस बन गया, यानी अनऑर्गेनाइज्ड मास बन गया फर्ज करो, तो उसके लिए हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों चाहिए ताकि वो उसकी पर्टिकुलर रूट शूट डेवलपमेंट में उसको कर सकें हेल्प. ओके, सो दीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉर्फोलॉजी, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स. ओके, and differentiation. What is differentiation? Means when the cells they acquire a particular function, means the leaves they develop the chloroplast, then development of the cambium so as to increase the means so as the cambial cell undergo the division. So differentiation means different cells they are assigned with a particular function in the presence of cytokinin. नेक्स्ट फंक्शन इज सेनिसेंस. सेनिसेंस का मतलब सेनिसेंस आपको बताया था मैंने कि जस्ट व्हेन द प्लांट और एनीथिंग व्हेन इट गोज टुवर्ड्स द एजिंग एंड डेथ, द फिनोमिना ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड सेनिसेंस, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. तो जो साइटोकाइनिन है ये सेनिसेंस को डिले कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज डिलेइंग द सेनिसेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज रिचमोंड-लैंग इफेक्ट. यहाँ मैं लिख रही हूँ रिचमोंड-लैंग इफेक्ट. ये उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. रिचमोंड-लैंग इफेक्ट मींस साइटोकाइनिन दे डिले द सेनिसेंस. ओके, नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एपिकल डोमिनेंस आपको याद है क्या था, यानी कि प्लांट की जो टिप है दैट एपिकली इट कंटिन्यू टू ग्रो एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करता था कि एपिकल पार्ट ग्रो कर रहा है तो ये लेटरल बड को ग्रो नहीं करने देता था. लेकिन जो साइटोकाइनिन है दैट आर एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन. इन दिस मैनर ये क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. यानी कि ये एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि ये ऑक्सिन का उल्टा है. यहाँ पे साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू
टू ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन क्या कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था, पर साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, लेटरल बड की ग्रोथ को, जो साइड्स में ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा, एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा। ओके, फिर है सीड डोरमेंसी। ये हमने पढ़ा कि साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, सीड की डोरमेंसी को डिले करते हैं, ख़त्म करते हैं उसको, सो दैट डोरमेंसी पीरियड कैन बी ओवरकम। देन रेजिस्टेंस, द प्लांट्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू द टेम्परेचर एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो साइटोकाइनिन दे प्रोवाइड द प्लांट टू फेस द unwanted condition, means that provide the resistance to the plant. Then phloem transport में cytokinin, phloem you know food transport में cytokinin play important role. Then sex expression, like the auxin, it promote the femaleness in the male plants, femaleness को भी promote करता है। Parthenocarpy means that is the seedless fruits are produced by the cytokinins. Okay, तो ये मैंने आपको कुछ इसके important फंक्शंस बताए हैं। अब कहाँ यूज़ किया जाता है साइटोकाइनिन को, सबसे पहला आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यानी कि आप कोई भी एक्सप्लांट, कोई भी पार्ट ले सकते हैं, लीफ का, शूट का, रूट का, कहीं से भी कोई पार्ट लेते हैं और उसको आप न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करते हैं, तो वो तो एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बन जाएगा, कैलस बन जाएगा। तो वहाँ पे सेल डिवीज़न के साथ साथ, देखो टिश्यू कल्चर में दो काम है, एक तो सेल डिवीज़न, क्योंकि सेल्स डिवाइड करेंगी तो बात बनेगी ना, फिर दूसरा है मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि रूट, शूट, लीफ, इन सब का डेवलपमेंट होना, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकली पार्ट्स का डेवलप होना, दैट रिक्वायर द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बोथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइटोकाइनिन है वो टिश्यू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ओके, सेकंड है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ के लिए तो आप तैयार रहिए कि आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। शेल्फ लाइफ क्या होता है, स्टोरेज पीरियड। जैसे हम वेजिटेबल्स को लाते हैं, जल्दी से ख़राब हो जाए, है ना, और एक अगर वो उसके ऊपर क्या किया जाता है, साइटोकाइनिन्स अप्लाई किए जाते हैं, हार्मोन्स, ताकि उसको हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। स्टोरेज पीरियड उसका जो है फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, इवन फ्लावर्स आल्सो, उसको भी उनकी भी ये सेनेसेंस को डिले किया जा सकता है। आप देखते हो फ्लावर शॉप्स पे जो फ्लावर हम लेकर आते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्यों? क्योंकि दे आर अप्लाइड विद द सम पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द साइटोकाइनिन एंड दे रिमेन फ्रेश। यू माइट हैव ऑब्जर्व कि आप अपने गार्डन से एक प्लांट लेकर आते हैं, बड़ी जल्दी मुरझा जाएगा, और वहीं एक आप रोज़ या कोई भी फ्लावर लेकर आते हैं फ्रॉम मार्केट, तो जल्दी से नहीं खराब होता, बिकॉज इट इज़ अप्लाइड विद द साइटोकाइनिन्स। ओके, देन रेजिस्टेंस, द साइटोकाइनिन्स दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस or to the plant, to the temperature change, or to the diseases, to the drought resistance, different type of resistivity that is provided by the cytokinins. Okay, overcoming the senescence means ये senescence को overcome करता है, जो plant के अंदर deteriorative changes शुरू हो गए हैं उसे slow down करता है and keep the plant fresh and young, so it delay the senescence. तो ये कुछ important point थे। senescence के लिए आपको याद है मैंने एक बात बताई थी, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, that you should keep in mind because this is something important. ये हमारे जनरल यूजेस हो गए, बट नाउ इट्स द टाइम फॉर द ट्रिक। सो व्हाट इज देयर फॉर द ट्रिक यू शुड कीप इन माइंड। जैसे अभी क्या है, कोरोना अफेक्टेड पीपल को जो कुछ लोग हैं ऐसे जो एक जगह पे फंस गए, उनके लिए क्या किया गया कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बसेस मैनेज की गई हैं। उसी तरीके से उसी को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ है कि CM हैज़ लॉन्च द न्यू बसेस इन हिज एरिया। अब जब नई बसेस आएंगी तो लोगों का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, आप न्यूज़ में देख ही रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, बुकिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टिकट कलेक्शन एडवांसेस सेड CM, ठीक है, इस लाइन को आपने याद रखना है आज के माहौल को देखते हुए और अपने साइटोकाइनिन की फंक्शंस को याद करने के लिए। तो लेट्स हैव द डिस्कशन। हमारी ट्रिक है टिकट कलेक्शन एडवांसेस सेड CM, ठीक है। तो टिकट में मैंने क्या लिया, TI, और यहाँ से लिया C, तो क्या बन गया, टिश्यू कल्चर, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया कि टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का जबरदस्त रोल है, क्योंकि वो सेल डिवीजन भी साइटोकाइनिन की वजह से होगा और मॉर्फोजेनेसिस भी साइटोकाइनिन की वजह से होगा। ओके, फिर आता है हमारे पास AD, दैट इज द AD का मतलब है एपिकल डोमिनेंस, यानी कि
ये क्या करता है, इट डिक्रीजेज, क्या कहेंगे, इट रिटार्ड या इट डिक्रीजेज एपिकल डोमिनेंस। मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनिन ऑक्सिन का उल्टा काम कर रहा है। कैसे? ऑक्सिन क्या कर रहे थे, एपिकल डोमिनेंस बढ़ा रहे थे, लेकिन साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, उसको घटा रहा है, लेटरल ग्रोथ को ये प्रमोट कर रहा है। ओके, फिर आता है हमारे पास सेड। सेड में मैंने एस और आई लिया है, यानी कि शूट इनिशिएशन या बड इनिशिएशन, यानी कि शूट की फॉर्मेशन है, बड की इनिशिएशन है, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द साइटोकाइनिन। फिर आ गया हमारे पास सी एम। सी का मतलब है साइटोकाइनेसिस और एम का मतलब है मॉर्फोजेनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या था, सेल डिवीजन। पता ही आपको कि साइटोकाइनिन का नाम ही इस वजह से है बिकॉज इट कंट्रोल द सेल डिवीजन। और मॉर्फोजेनेसिस मीन्स इन द टिश्यू कल्चर व्हेन वी टॉक द फॉर्मेशन ऑफ द रूट एंड द शूट एंड द डिफरेंट ऑर्गन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बोथ। ओके, इजी है ना? इस सबको याद रखने के लिए एक ही लाइन याद करनी है, टिकट कलेक्शन एडवांसेस सेड सीएम। टिकट मतलब टिश्यू कल्चर, सी इसी के साथ आ गया। एडवांसेस में मैंने एडी लिया, यानी कि एपिकल डोमिनेंस को ये रिटार्ड करेगा, ध्यान रखना है आपने। और यहाँ हमने लिया शूट इनिशिएशन, यानी कि बड इनिशिएशन है, शूट इनिशिएशन है, उसके लिए ज़रूरी है। सी मतलब साइटोकाइनेसिस, एम मतलब मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइटोकाइनिन्स के फंक्शन, कैसे डिस्कवरी हुई, और शायद 18 तरह की जो साइटोकाइनिन्स है अब तक हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। क्या इनके फंक्शन थे, क्या आपके माइंड में आता है जब आप साइटोकाइनिन को समझते हो? देखो, जब हमने जिब्रेलिन की बात की तो एक ही चीज़ माइंड में आती है कि वो इलोंगेशन करता है, इंटरनोड लेंथ को बढ़ाता है, यही पढ़ा हमने। जब हमने साइटोकाइनिन की बात की तो एक ही चीज़ माइंड में आती है जो मेन है, रिफ्लेक्शन क्या आती है, दैट इट कॉज द डिवीजन ऑफ द सेल, क्योंकि इसका नाम साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन, सेल की डिवीजन करना इसका मेन काम है। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, ये लास्ट में आएगी पर आप ध्यान अभी से रखो। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कुछ हार्मोन ऐसे हैं जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कहीं कहीं एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल डिवीजन कर रहे हैं, सेल इलोंगेशन कर रहे हैं, तो वो ऑक्सिन भी कर रहा है, जिब्रेलिन भी कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जो दोनों ही एक जैसे हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिमिलर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट हार्मोन। आर यू गेटिंग? कि एक ही तरह का इफेक्ट अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब आता है नेक्स्ट टर्म आती है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है कि दो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। क्यों? क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, जबकि ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को डिक्रीज करता है, रिटार्ड करता है। इसी तरीके से आप कुछ डिफरेंसेस फाइंड करें। जब सारे हार्मोन हम कर लेंगे देन वी विल डिस्कस द सम सिनर्जिस्टिक एंड सम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स। ओके, क्लियर है आपको? ये फंक्शंस थे हमारे पास किसके, साइटोकाइनिन्स के। ओके, हाँ जी बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग डिफरेंट हार्मोन। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये कॉमन आपने एक सुनी होगी बात। इसको ऑब्जर्व कहाँ किया है? अगर आपकी किचन के अंदर अमरूद पड़े हैं, आपको बड़ी तेज़ उसकी खुशबू आ जाएगी। मैंगो पड़े हैं, उसका पता चल जाएगा। खरबूजा है, आपको उसका पता चल जाएगा। फिर आपने कभी ये भी देखा होगा कि अगर आप एक जो रॉटन फ्रूट बास्केट में रख दें, एप्पल है, बनाना है, तो बाकी सब जो फ्रूट्स हैं उनके भी गलने का खतरा रहता है। ये बातें आपने सुनी होंगी और ऑब्जर्व की होंगी। तो उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार है इथाइलिन। इथाइलिन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये एक अकेला गैशियस हार्मोन है, वॉलेटाइल हार्मोन है। वॉलेटाइल है तभी हमें पता चलता है ना,
खुशबू आ जाती है हमें किसकी, खरबूजे की, आम की, चीकू की, इन सब की खुशबू आपको एकदम से आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन क्या है, गैशियस हार्मोन है, इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। ओके, सो लेट्स हैव द फंक्शंस ऑफ द इथाइलिन। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो इथाइलिन है इसका जो मेन रोल है वो ये पाया गया कि फ्रूट की राइपनिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब एकदम से ये ट्रिगर हो गया इथाइलिन का प्रोडक्शन, मतलब स्टार्ट हो गया, देन इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, then the rate of respiration increase and that is called climacteric rise, that is called, and these fruits are called climacteric fruit। climacteric मतलब समझ रहे हो कि जब एकदम से रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत तेज़ हो गया, जब फ्रूट की राइपनिंग शुरू हो गई, इट्सेल्फ अगर एक बार इथाइलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई तो इट्सेल्फ ये बहुत फास्ट हो जाएगी, एंड दैट लेड टू द राइपनिंग एंड ओवर राइपनिंग। अगर राइपन स्टेज पे हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे देन इट लेड टू द ओवर राइपनिंग, दैट इज द इथाइलिन। ओके, ये वॉलेटाइल हार्मोन है, ये बात आपको पता चल गया, गैशियस है। ओके, तो पहला फंक्शन जो आता है हमारे पास ग्रोथ। देखो, जो इथाइलिन है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ नहीं करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसवर्स ग्रोथ, ये बात आपने याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इट डज नॉट प्रमोट द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, इट प्रमोट द ट्रांसवर्स ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेविटी का। अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो ये ग्रेविटी की जो सेंसिटिविटी है उसे कम करता है। जैसे स्टेम क्या है, हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है, पर इथाइलिन की प्रेजेंस में इट ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ। ओके, रूट टूवर्ड अर्थ ग्रो करती हैं, देन रूट्स दे कैन बिकम एपोजियोट्रॉपिक, मीन्स दैट दे मीन्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हम कह सकते हैं। रूट नीचे की तरफ ग्रो करनी चाहिए बट इट बिकम्स अबव। ओके, लीफ दैट आल्सो ड्रूप डाउन, वो भी इस तरीके से ग्रो करेगी कि नीचे झुक जाएगी। तो मतलब जो सेंसिटिविटी है ग्रेविटी की, जो हम नॉर्मल नॉर्म्स में पढ़ते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, उसका इफेक्ट जो है सेंसिटिविटी वो कम हो जाएगी। फिर है सेनिसेंस, ये क्या करता है, इट प्रमोट, इट इंक्रीज सेनिसेंस। देखो, एक अगर कोई रॉ चीज़ है, जब वो पकना शुरू होती है, पकने के बाद वो ओवर राइपनिंग वाली स्टेज में जाती है तो वो डैमेज हो जाती है, जिसे हम सेनिसेंस या डेथ कहते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, प्रमोट करता है सेनिसेंस को। एब्सिशन, एब्सिशन पॉइंट आपके लिए नया है और इम्पॉर्टेंट भी है। एब्सिशन क्या है, देखो ये जो स्टेम है इसके ऊपर ये लीफ है या कोई फ्रूट है, जब एक पर्टिकुलर स्टेज पे ये जो कनेक्शन है, हियर द सेल वॉल गेट डिसॉल्व एंड द लीफ सेल वॉल जो आपस में कनेक्टेड है, दे स्टार्ट सेपरेटिंग एंड द लीफ और द फ्रूट फॉल डाउन, एंड द फॉलिंग डाउन ऑफ द लीव्स और द फ्रूट इज कॉल्ड एब्सिशन। तो जो इथाइलिन है दैट प्रमोट द एब्सिशन। ओके, देन इट प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस, जैसे ऑक्सिन करता है, ये एपिकल डोमिनेंस के फेवर में है इथाइलिन भी। डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। एब्सिसिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सिसिक एसिड हमारा एक और हार्मोन है जो बेसिकली डोरमेंसी करता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, अभी हम पढ़ेंगे। तो इथाइलिन एट सम स्टेज इट कैन लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। ओके, देन ग्रोथ ऑफ राइस सीडलिंग, दैट इज maybe that is the function of the ethylene, that it promote the growth of the rice seedling. Then in lower concentration it initiate the root formation. Then fruit ripening, that I am telling you in advance कि ये इथाइलिन का जो मेजर रोल है, इसको एक नाम भी और दिया गया है, that I should discuss with you, that is the fruit ripening हार्मोन। मतलब कि हार्मोन का नाम ही फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये वो हार्मोन है जो फ्रूट को पकने में यानी कि राइप होने में हेल्प कर रहा है। ओके, एंड व्हेन वंस द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन स्टार्ट, देर इज़ द सेल्फ स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन अकर्स। ओके, तो क्या होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्टिक राइज। ये बात आपके लिए ध्यान रखनी है। फिर है सेक्स एक्सप्रेशन, लाइक अदर वी हैव स्टडीड, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द फेमिनाइजिंग इफेक्ट। ओके, फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। फ्लावरिंग, दैट इन केस ऑफ द पाइनएप्पल इट प्रोड्यूस द फ्लावर्स। इथाइलिन हैज़ द रोल इन प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर। Now where it is used,
फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इथाइलिन का जो मेजर रोल है दैट इज़ द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। जो बहुत ये जो स्टोरेज के लिए देखो, अगर किसी ने स्टोर करना है फ्रूट को, वेजिटेबल को, तो वो क्या करेगा, पकने के बाद तो तोड़ेगा नहीं, कच्चा ही उसे तोड़ा जाएगा, और अगर उसको पका हुआ तोड़ा जाएगा तो वो और ज़्यादा गल जाएगा। तो इथाइलिन की प्रोडक्शन उसको रोक दी जाती है, ताकि जो अगर इथाइलिन प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको बताया ना कि अगर एक भी एप्पल अगर राइप है तो आसपास के सारे को खतरा है। क्यों? क्योंकि वो एप्पल क्या कर रहा है, इथाइलिन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो गैसेस होने के कारण दूसरों में भी स्टार्ट कर सकता है इथाइलिन की प्रोडक्शन। तो जितने भी वो आसपास फ्रूट की अवेलेबिलिटी होगी वो सारी की सारी इथाइलिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, एंड दिस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द राइपनिंग। और राइपनिंग के बाद क्या था, ओवर राइपनिंग, डेथ। ओके, दैट इज द सेनेसेंस डेथ। Then next है feminizing effect. I told you that for production of the female flower ethylene is used. Then sprouting of storage organ means tubers हैं, rhizomes हैं, seeds हैं, that are sprouted by using the ethylene. Okay, थिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक पेड़ पे बहुत सारे एक्सेस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर देयर, देन व्हाट विल हैपन, दैट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी विल बी लेस। तो थिनिंग में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट दैट शेड डाउन, एक्सेस ऑफ फ्लावर दैट विल, सो दैट द रिमेनिंग फ्रूट्स दे कैन गेट द प्रॉपर नरिशमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थिनिंग आपने ज़रूर याद रखना है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ इथाइलिन के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे और इम्पॉर्टेंट यूजेस थे। नाउ लेट्स हैव द ट्रिक फॉर दिस। क्या है, ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड। ठीक है, ये आपने एक सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस है जो आपने याद करना है। क्या कहा मैंने, ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड। तो क्या मतलब है, ऐड का मतलब क्या, ए, यहाँ पे ए जो है दैट इज फॉर द एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या था, फॉलिंग डाउन ऑफ लीफ। तो ये क्या करता है, इथाइलिन क्या करता है, सोच के बताओ, प्रमोट द एब्सिशन। ओके, देन एस फॉर सेनिसेंस। तो ये क्या करता है, सेनिसेंस को भी बढ़ाता है, सेनिसेंस को मतलब इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। देन रॉ, रॉ के अंदर हमने लिया है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आर लिया मैंने इसके अंदर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, पीनट, पीनट मतलब दैट इज द इनिशिएशन ऑफ germination of peanut seeds. Okay, and then butter is there. Butter means breaks, break, b से हमने break लिया, b d यानी कि break bud dormancy। समझ आई बात आपको? यानी कि अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, ऑन कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए था। एब्सिशन को ये क्या करता है, बढ़ाता है, सेनिसेंस को भी इंक्रीज करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, क्योंकि हमने बताया कि ये क्या है, वॉलेटाइल हार्मोन है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। फिर पीनट की जर्मिनेशन ऑफ द पीनट सीड्स इंपॉर्टेंट है, एंड इट ब्रेक द बड डॉर्मेंसी। ये सब मैंने आपको बताया, ब्रेकिंग करता है। देखो आपने ब्रेकिंग डॉर्मेंसी पहले ही पढ़ रखा है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट राइपनिंग इंपॉर्टेंट है, एब्सिशन और सेनिसेंस का इंपॉर्टेंट है, यही इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो लाइक बाय दिस सिंगल लाइन यू कैन कीप all the functions of ethylene in your mind. So we have done the gibberellin, we have done the cytokinin, and we have done the ethylene. Gibberellin का मेन फंक्शन क्या था, elongation of internode। सबसे अच्छा एग्जाम्पल शुगर केन। साइटोकाइनिन का सबसे अच्छा क्या आपने पढ़ा, उसका फंक्शन सेल डिवीजन, जो सेल्स को डिवाइड कर रहा है, और मेन फंक्शन सेल डिवीजन। फिर आया इथाइलिन, इथाइलिन का नाम ही फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, और ये एक अकेला वॉलेटाइल गैशियस हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। इज इट क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। हाँ जी बेटा, दिस इज द लास्ट हार्मोन, that is the abscisic acid. This hormone
वर्क एंटागोनिस्टिक टू अदर हार्मोन। जो फंक्शंस आपने ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन के पढ़े, या मेनली जो ग्रोथ प्रमोटर के ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के पढ़े, ये उनके अगेंस्ट काम करेगा। जो रिएक्शंस वो करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म वो कंट्रोल करते हैं, इट वर्क अगेंस्ट देम। ओके, दिस हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मीन्स ड्यूरिंग वेन एवर एनी स्ट्रेस कंडीशन इज देयर इन द प्लांट, इट हेल्प टू अवॉइड टू मीन्स so as to means to avoid any damage, this hormone is released. This is called stress hormone. इसका another name जो है that is the dormin. Dormin का मतलब है means it causes the dormancy. ओके, तो अगर हम डिले करना चाहते हैं किसी की स्प्राउटिंग, मतलब हम चाहते हैं सीड्स डॉर्मेंट रहें, देन एब्सिसिक एसिड कैन बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके फंक्शंस हैं। पहला है बड डॉर्मेंसी। आई टोल्ड यू दैट एब्सिसिक एसिड दैट इंड्यूसेस द डॉर्मेंसी ऑफ द बर्ड्स, मीन्स इट डज नॉट अलाउ देम टू ग्रो, and seed dormancy also, that abscisic acid that prevent the seed to germinate. Okay, means it causes the seed dormancy. Then it stop the cambium activity, means जो माइटोसिस होती है, सेल्स डिवाइड करती हैं, जो abscisic acid है that stop the cambium activity. Then abscission. Abscission I told you, falling down of leaves, that is enhanced by the abscisic acid. नाम से पता चल रहा है ना, abscission, एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिशन तो इसका मेन रोल है। लीफ सेनिसेंस यानी कि लीव्स का डेथ, एजिंग, डेथ की तरफ बढ़ना, दैट इज लीफ सेनिसेंस एंड दैट अकर्स ड्यू टू द excessive production of the abscisic acid. Then transpiration, I told you earlier also कि it work as the anti-transparent. क्यों? ये स्टोमेटा को ही क्लोज कर देता है। When the water availability is not there, then means if it is less also, then abscisic acid cause the stomatal closure of the plant and thus reduce the transpiration. रेजिस्टेंस आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा गया बिकॉज इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द प्लांट अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ द ऑड कंडीशन, कोल्ड कंडीशंस और डिजीज रेजिस्टेंस और ड्रॉट रेजिस्टेंस। देन इन शॉर्ट डे प्लांट, बहुत ध्यान वाली बात है कि in few short day plant conditions, in certain condition, it promote the flowering. For example, in strawberry, this is an example from your NCERT, so you should keep in mind. Then it induce the parthenocarpy in some fruits under some conditions, rooting, and it is also responsible for the development of the roots from the roots of the some cut ends of the stem. तो कहाँ यूज़ किया जाता है? सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज़ द एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को रोकता है। कैसे रोकेगा? स्टोमेटा बंद करके। फिर आता है फ्लावरिंग। आई टोल्ड यू कि शॉर्ट डे प्लांट्स में, शॉर्ट डे आई विल डिस्कस, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए, शॉर्ट डे कंडीशंस में ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है शॉर्ट डे प्लांट्स में। देन इट इंड्यूस द रूटिंग, आई टोल्ड यू। डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं हम इसको यूज़ भी करते हैं। डोरमेंसी अगर हम नहीं चाहते कि वो सीड्स जर्मिनेट करें, कोई ट्यूबर, कोई राइजोम जर्मिनेट ना करे, ग्रो ना करे, दे मस्ट रिमेन डोरमेंट, देन एब्सिसिक एसिड इज यूज्ड। Again, time for the trick. A BDS student closed the reservoir. इन सारे फंक्शंस को याद करने का एक बेस्ट वे है, एक लाइन, एक ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ABDS, A का मतलब क्या है? एब्सिशन, यानी कि ये क्या करता है? इट प्रमोट द एब्सिशन, तभी इसका नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। ओके, फिर आता है BDS। BDS का मतलब पता है क्या है? बड, डी का मतलब डोरमेंसी, एस का मतलब सीड, यानी कि बड और सीड की डोरमेंसी को ये प्रमोट करता है, एनहांस करता है। ओके, फिर आता है हमारे पास स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का ST लिया मैंने और ये बन गया स्टोमेटा, ठीक है, और ये क्लोज्ड का क्लोज्ड आ गया, स्टोमेटा क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद आता है द का लिया ट्रांसपीरेशन। आप सोच के बताओ ट्रांसपीरेशन का क्या करता है? ये ट्रांसपीरेशन को क्या करता है?
कम करता है। ट्रांसपीरेशन को कम कैसे करता है? स्टोमेटा को क्लोज करके। फिर हमने लिया रिजर्वायर। रिजर्वायर का हमारे पास है दैट इज द आर से हमने लिया resistance to cold and the other conditions which are not favorable for the plant, so that's why it is called as a stress hormone। ठीक है, तो यहाँ सारे फंक्शन हो गए ना हमारे। देखो ए से एब्सिशन, ए BDS स्टूडेंट एब्सिशन हो गया, यानी कि प्रमोट द एब्सिशन। बड एंड सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, क्लोज हो गया। टी मतलब ट्रांसपीरेशन। रिजर्वायर का हमने आर लिया यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसी के अंदर से आपको 2-3 चीज़ें पता चल गई। डोरमेंसी करता है इसलिए इसका नाम क्या है? डोरमिन, है ना। और अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो इसका नाम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन, राइट। So this is all about all the hormones. In this video I discussed with you gibberellin, cytokinin, ethylene, abscisic acid, their complete description with their historical backgrounds and their discoveries, their function, their uses, and the most important things I told you about the tricks how to learn all these hormones. Okay, so keep this in your mind, learn this, first revise, listen the video properly, watch it properly, and then write down all the points. Okay, don't try to cram, try to understand and cram this line only. When you will understand all the function, सीधा इस लाइन पे नहीं आना, पहले इन सारे functions को आपने समझना है, then cram only these 5 lines and then you will be answerable to all type of questions. That is my guarantee to you people. अगर आप इसको याद करेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत easily याद हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। Okay, so stay tuned, stay healthy, stay safe, stay home. Thank you.